welcome to Chemistry Academy. Today we are going to study solid state. We know that about state of matters. There are three types of state of matters: solid, liquid, and gas. We will particular study about solid states in these units, right? So, what is solids? How it is different from liquid and gaseous form, right? So, in case of solids, they have very high interatomic attraction. Means दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत हाई होता है, राइट? दैट्स व्हाई दे हैव पर्टिकुलर शेप, दे डोंट चेंज देयर स्टेट, राइट? नेक्स्ट, दे हैव वेरी लेस इंटरएटॉमिक डिस्टेंस. उनके जो एटम्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है. सो दे हैव आल्सो सम स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट? सो दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. Solids are divided into two types: crystalline solids and amorphous solids. So how they are different from each other, we will study that. Crystalline solid and amorphous solids. Crystalline solids exist as a small crystals, right? They have small crystals. And what is amorphous? Amorphous are powder form, right? So crystals में particular crystals exist करते हैं crystalline solids में, while in case of amorphous solids they are in powder form, right? Crystals having characteristics geometry. Crystals की particular geometry होती है, particular shape होते हैं, right? While in case of amorphous solid ऐसा कुछ होता नहीं है. Crystals have definite pattern, right? क्रिस्टल जो क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो डिफाइनेड पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं. उसका पूरा एक नेटवर्क होता है, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क, वो होता है डिफाइनेड पैटर्न में. बल्कि यहाँ पर क्या होता है? रैंडम अरेंजमेंट. पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? रैंडम होती है. एक और पॉइंट, दे हैव डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट. दे हैव डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट. व्हाइल इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड रेंज ऑफ टेम्परेचर. क्या होता है इसका मीनिंग? That crystalline solids will melt at particular temperature. For example, कोई solid है crystalline solid, उसका melting point है 1100 degree Celsius. तो at that temperature it will start melting. It will melt. But in case of amorphous solids, it will not melt at particular temperature, but it will start melting at some range of temperature, right? So this is the important point about crystalline solid and amorphous solid. Examples: sugar and salts are the example of crystalline solids, and rubber and glass. Also glass is known as supercooled or highly viscous liquid. What is mean that supercooled liquid मतलब अगर कोई लिक्विड है उसको बहुत ही कूल कर दिया गया है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, एट दैट टाइम वो जो फॉर्म में होता है उसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड. किसको कहते हैं भाई? ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड और हाईली विस्कस लिक्विड. मतलब ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, राइट? नाउ आइसोट्रोपी एंड एनिसोट्रोपी. व्हाट इज आइसोट्रोपी एंड व्हाट इज एनिसोट्रोपी? सो आइसोट्रोपी इज दैट value of a physical property is same in all the direction. Same in all the direction of solid. मतलब कोई solid है, उसकी सारी डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू सेम होती है, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो. और एनिसोट्रोपी क्या होता है? Magnitude of a particular physical property is different in different direction. Is different in different direction, right? So that is the difference between isotropy and anisotropy. Now one more term, amorphous solids are isotropic in nature, while crystalline solids are anisotropic. Crystalline solids are anisotropic in nature. Means कोई crystalline substance है, उसकी कोई physical property है. For example, velocity of light. कोई crystalline solid है मेरा, right? For example, इस direction में मैंने उसकी speed of light, velocity of light measure की मैंने, so वो कुछ x आई. लेकिन अगर मैंने दूसरी कोई डायरेक्शन में मेजर की तो वो आएगी y. इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट?
but in case of amorphous solids it will not happen. In case of amorphous solids, in all direction that physical properties magnitude will remains constant, it will remains same, right? How it happens? For example, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेरा जिसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह है, राइट? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसमें दो टाइप के पार्टिकल्स है, उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, राइट? कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आई एम मेजरिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैंने ये डायरेक्शन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर की, उसकी वैल्यू कुछ आई, राइट? लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या हुआ? देखो ये वाली डायरेक्शन में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देखो, और ये वाली डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर ब्लैक वाले पार्टिकल्स भी आ रहे हैं और व्हाइट वाले तो आ ही रहे, राइट? दैट्स व्हाई डायरेक्शन चेंज होते ही फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होने वाली है. दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी. दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी. So this is the isotropy and anisotropy. Crystalline solid shows anisotropy and amorphous solid show isotropy. So here we can write this shows isotropy. This shows isotropy and this shows anisotropy. Right? This is the important point. You have to remember it. Right? Next, crystalline structure. Crystal structure के बारे में बात करते हैं कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या अरेंजमेंट होती है. उसके अंदर एक टर्म आता है स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस. अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स that showing how particles are arranged at different sides in 3D space is called space lattice. इसका मतलब क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, राइट? वो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, वो जो साइड्स दिखाती है, वो जो पैटर्न दिखाती है, वो पैटर्न को कहते हैं स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस. और वो जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं लैटाइस पॉइंट. फॉर एग्जांपल मेरे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी पैटर्न ये है, ऐसे एक पैटर्न में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म हो रहा है, तो इसे कहेंगे स्पेस लैटाइस. इसे क्या कहेंगे? स्पेस लैटाइस. कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर वो बना रहा है और ये जो पॉइंट है उसे कहेंगे लैटाइस पॉइंट. क्या कहेंगे? लैटाइस पॉइंट. नाउ द टर्म इज कम यूनिट सेल. व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट in space lattice which when repeated over and over again results in a crystal of a given substance. मतलब smallest repeating unit in our crystalline substance कि जिसको बार बार रिपीट करते ही मेरा पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, तो that repeating unit is known as unit cell. That repeating unit is known as unit cell. Right? Now we will study about unit cell. Right? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल. उसमें भी तीन टाइप होते हैं. तो इन जनरल में यूनिट सेल को 4 टाइप में बाइफरकेट करूंगा. फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल. Second, body centered unit cell. Third, face centered unit cell. And fourth is end centered unit cell. End centered unit cell. Right? First one is primitive type of unit cell, or we can say simple cubic unit cell. Second, body center unit cell. Third is face center, and fourth is end center. Now, what is primitive or simple cubic unit cell? Right? So, in case of primitive unit cell, it is a simple cube. Right? This is a simple cube in which atoms are present at only corners of the atom. Atoms are present at only corner of the unit cell. This type of unit cell is known as
primitive unit cell, right? Second, body center. Second, body centered unit cell, right? What is body centered unit cell? Unit cell in which atoms are present at the corner and also at the center of the cube. मतलब कॉर्नर पर तो एटम है ही है, लेकिन साथ में क्यूब के सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट है. That type of unit cell is known as body center unit cell, right? Next is face center. Next is face center unit cell. What is face center? फेस सेंटर में कॉर्नर पर तो एटम्स होते ही है और साथ में जितने भी फेस है क्यूब के उन सब के ऊपर भी एटम्स प्रेजेंट है, राइट? थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट? सो फेस सेंटर किसे कहेंगे? क्यूब है, उन सबके कॉर्नर पर एटम है और जितने भी फेस है उन सबके सेंटर में एक एक यूनिट है, एक एक एटम प्रेजेंट है, राइट? जितने भी फेस है. कितने फेस होते हैं क्यूब के? 6 फेसिस. कितने फेस होते हैं? 6 फेसिस, राइट? सो ऑल 6 फेसिस हैव वन एटम ऑन इट, राइट? ऑल्सो कॉर्नर पर तो होते ही है. नेक्स्ट फोर्थ, एंड सेंटर. एंड सेंटर को भी क्यों नहीं? यूनिट सेल. उसमें क्या होता है भाई? कॉर्नर पर तो होते ही है, सारे कॉर्नर पर एटम्स, एंड any two faces which are opposite to each other, which are facing to each other. कोई भी दो फेसिस जो एक दूसरे के ऑपोजिट में हो, उन दोनों के ऊपर एक एक एटम प्रेजेंट होता है. That type of unit cell is known as end centered unit cell. अब एक चीज, some parameters of unit cell. Parameters of unit cell. Parameters of unit cell, right? जनरल 4 और 4 की बात हो जाएगी इसमें, राइट? उसकी एजिस को क्या कहेंगे? एजिस को ए बी एंड सी. क्या कहेंगे? ए बी एंड सी. इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल्स उसे कहेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट? ए बी एंड सी, 3 एजिस उसके, और इंटरफेशियल एंगल मतलब दो फेसिस के बीच का एंगल, दैट इज कॉल्ड अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट? अब एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं भाई? 8 कॉर्नर. कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर, राइट? एजिस, एजिस कितने होते हैं? 12, राइट? फेस, फेस होते हैं 6. देन बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4. कितने होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल, राइट? देन फेस डायगोनल, वो कितने हो गए? 6. वैसे तो 12 होने चाहिए, राइट? एक फेस है, उसके ऊपर 2 फेस डायगोनल, राइट? ये एक फेस है, स्क्वायर फेस, उसके अंदर फेस डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये और ये, बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब, दैट्स व्हाई ये दोनों फेस डायग्राम सेम होंगे, राइट? सो ईच फेस हैव वन फेस डायग्राम, दैट्स व्हाई देयर आर 6 फेस डायग्राम, राइट? सो ये पॉइंट आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा आगे, राइट? अगेन फिर से प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. बॉडी सेंटर यूनिट सेल मतलब 8 कॉर्नर्स प्लस एक एटम कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर, मतलब क्यूब के सेंटर पर प्रेजेंट होता है. फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर मतलब क्या? 8 कॉर्नर
प्लस 6 और 6 फेस के सेंटर पर एक एक एटम्स प्रेजेंट होता है। दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज फेस सेंटर यूनिट सेल। फोर्थ इज एंड सेंटर। व्हाट इज एंड सेंटर? एंड सेंटर मतलब ऐसा यूनिट सेल इन विच दो ऑपोजिट फेसिस पर, ओनली टू, दो ऑपोजिट फेसिस के सेंटर पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है। राइट? नाउ टर्म्स कम atoms per unit cell, atoms per unit cell, right? What comes? Atoms per unit cell मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव की बात करता हूँ कि प्रिमिटिव में कितने एटम्स प्रेजेंट? सर 8 है, दिख तो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट? 8 प्रेजेंट है, लेकिन ये 8 इसी प्रिमिटिव, इसी क्यूबिक में प्रेजेंट नहीं है, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है। हमारे क्रिस्टल सब्सटेंस में ये अकेला यूनिट सेल नहीं होगा, उसके आजू बाजू लाखों करोड़ों यूनिट सेल्स होंगे, उन सबके साथ भी कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन देगा। फॉर एग्जांपल स्कूल में, क्लास में कई की बात करते हैं रूम्स, राइट? सो एक रूम दूसरे रूम के साथ शेयर करता है, जो ये वॉल होती है वो किसके साथ? बाजू वाले रूम के साथ शेयर होती है, राइट? इसी तरह एक क्यूब होता है, उसके बाजू में दूसरा क्यूब भी प्रेजेंट होगा भाई, राइट? उसके बाजू में एक और क्यूब, ऊपर एक क्यूब, नीचे क्यूब, इस तरह आजू बाजू हर जगह क्यूब प्रेजेंट होता है, राइट? सो ये एक एटम पूरा का पूरा इस क्यूब में प्रेजेंट नहीं होता, वो आजू बाजू के दूसरे 7 क्यूब के साथ कंट्रीब्यूशन देता है। कितने क्यूब के साथ? 7 क्यूब, और ये क्यूब आल्सो प्रेजेंट है। सो वन एटम एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स टू 8 क्यूब्स। one corner atom contributes to 8 unit cell. How many unit cell? 8 unit cell, right? So एक एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। कितना होगा भाई? 1/8, राइट? उसी तरह अगर बॉडी सेंटर की बात करूं तो बॉडी सेंटर में तो कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 1/8। लेकिन ये बॉडी सेंटर वाला एटम है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1 ही होगा। वो आजू बाजू में किसी भी यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो क्यूब के अंदर ही है, आजू बाजू कोई क्यूब के साथ शेयरिंग नहीं है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, राइट? फेस की बात करते हैं भाई। फेस मतलब व्हाट? वॉल। वो बाजू में दूसरे रूम के साथ कंट्रीब्यूशन होगा, राइट? सो मतलब एक वॉल 2 रूम के बीच में होती है, तो उसका शेयरिंग क्या होगा भाई? 1/2 होगा, राइट? फेस सेंटर एटम का क्या होगा? उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा भाई? 1/2। और ये बॉडी सेंटर का कितना होगा? उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, राइट? एंड सेंटर में भी वही है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटम्स पर यूनिट सेल, राइट? एटम्स पर यूनिट सेल। कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई? 1/8, राइट? सो प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में कितने कॉर्नर एटम है? सो हम फाइंड करते हैं टोटल एटम्स पर यूनिट सेल, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, राइट? सो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितने एटम्स है भाई? 8 एटम्स है। लेकिन कौन से वाले? कॉर्नर वाले, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8। सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1/8। यस और नो? सो 8 1 8, कितना बचा? 1। सो देयर इज ओनली 1 एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितना एटम है भाई? एक ही एटम है इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। बॉडी सेंटर की बात करते हैं, क्या फाइंड करना है? टोटल
एटम्स पर यूनिट सेल। क्या फाइंड करना है? टोटल एटम्स पर यूनिट सेल। सो कितने एटम्स है? 8 कॉर्नर पर है। कितने हैं? 8 कॉर्नर पर। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/8, राइट। दूसरे एटम्स कौन से टाइप के हैं भाई? ये वाला बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, राइट। सो ऐड करना पड़ेगा उसका कंट्रीब्यूशन, राइट। सो एक बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 ही है भाई, राइट, 1 है। सो क्या होगा? 8 1 8, 1 plus 1, so it will be 2. So in body center type of unit cell there are 2 atoms per unit cell. In primitive there is only 1 atom per unit cell. FCC की बात करते हैं भाई। FCC में कितने टाइप के एटम्स हैं? 2 टाइप के, कॉर्नर्स के और फेस सेंटर के, राइट। कॉर्नर्स पर कितने हैं? 8, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। 8 कॉर्नर्स के, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये कितना होगा भाई? 1 होगा, है ना। बात करते हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर पर कितने एटम्स है? 6 फेस और 6 ऑल फेसेस के ऊपर एक एक एटम है, राइट। तो 6 फेस सेंटर एटम है। एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। मतलब क्या? वो 2 यूनिट सेल के बीच में है, मतलब 2 यूनिट सेल के बीच में कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट्स व्हाई आई विल मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो इट विल कम व्हाट? 3, राइट। सो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल विल बी व्हाट? 1 plus 3 is equal to 4, right? So in case of FCC, phase center unit cell, there are 4 atoms per unit cell. एंड सेंटर की बात करते हैं। कौन से टाइप के हैं? कॉर्नर एंड 2 फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर, ठीक है। सो कॉर्नर पर कितने हैं भाई? 8, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर पर कितने हैं भाई? 2 ही हैं, 2 ही फेस पर होते हैं, राइट। उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, राइट। सो 8 1 8, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। सो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 plus 1 इक्वल टू व्हाट? 2, व्हाट? 2, राइट। मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एंड एंड सेंटर में 2। कंट्रीब्यूशन याद रखना है, कॉर्नर वाला एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, राइट। अगर फेस सेंटर पर है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, बॉडी सेंटर पर अगर एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1, राइट। सो ये याद रखना है। सो ये बात हो गई एटम्स पर यूनिट सेल। क्यूब है, राइट, कोई भी है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, प्रिमिटिव कुछ भी, राइट। सो सपोज उसकी ये जो एज की लेंथ है वो कितनी है? ए। कितनी है? ए, राइट, ए। सो आई वांट फेस डायगोनल, आई वांट फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना होगा? व्हाट इज फेस डायगोनल? दिस वन। फेस जो स्क्वायर फेस है उसका डायगोनल की लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, राइट। सो कैसे निकालेंगे? ये भी क्या है भाई? एज है, ए दोनों सेम ही एज है, राइट। एक क्यूबिक है तो उसकी सारी एज कैसी होगी? सेम होगी, ए, राइट। सो ये भी ए, ये भी ए, राइट। आई वांट फेस डायगोनल, तो पाइथागोरस, राइट, पाइथागोरस। फेस डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। So it will be what? 2a square. Therefore, face diagonal is equal to what? Under root of this. So under root of 2a square is equal to what? Root 2a. So face diagonal कितना मिला भाई मुझे?
फेस डायगोनल इज इक्वल टू रूट टू ए। याद रखना है ये फॉर ऑल बीसीसी, एफसीसी एंड सेंटर प्रिमिटिव, चारों के लिए फेस डायगोनल विल बी व्हाट, रूट टू ए। अब बात करते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, राइट, बॉडी डायगोनल। व्हाट इज बॉडी डायगोनल? ये वाला भाई, ये वाला अंदर की साइड, राइट। क्या होगा? अंदर की साइड जो होगा दैट विल बी बॉडी डायगोनल। अब पाइथागोरस, राइट, ट्रायंगल के लिए कौन सा फाइंड करना है हमें? ये वाला। सो ये फाइंड करना है मुझे, राइट। सो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? दिस वन। इमेजिन थोड़ा करना पड़ेगा, राइट। सो दो कौन सी साइड्स मेरे पास है जिसका मेजरमेंट मेरे पास है? सो ये एक, ये तो है ही भाई मेरे पास, क्या है ये? ए। और ये वाला क्या है? फेस डायगोनल है। क्या है? फेस डायगोनल, जिसका मेजरमेंट हमने अभी निकाला। तो क्या होता है? रूट टू। सो दो मेजरमेंट है मेरे पास, मुझे तीसरा फाइंड करना है। तो फेस डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए स्क्वायर। यस और नो? राइट, ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा भाई? प्लस रूट टू ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 3a स्क्वायर। देयरफॉर बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, है ना? अंडर रूट 3a स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट 3a। सो दिस विल बी बॉडी डायगोनल मेजर, राइट। सो क्या याद रखना है यहाँ से? फेस डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2a, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट 3a इन ऑल 4 यूनिट सेल, चारों यूनिट सेल, राइट। फेस डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2a, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट 3a। अब चारों यूनिट सेल के बारे में देखते हैं, उनमें इनकी वैल्यू क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ये है मेरा प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके अंदर 8 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो अब मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिल सकता है क्या? दैट A is equal to 2R, where what is R? R is a radius of atom. R is a radius of atom. मतलब क्या? ये एटम एक दूसरे को टच करते होंगे, राइट। 3 डायमेंशन में सोचो भाई, 3 डायमेंशन में, भले यहाँ मेरी फिगर में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में ऐसा होता है इन केस ऑफ प्रिमिटिव, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, राइट। सो आई कैन राइट दैट A is equal to 2R। 2R कैसे भाई? एक इसका देखो, सपोज ये दोनों है, ये दोनों, ये जो छोटे गोले हैं उन दोनों को मैंने बड़ा लिख दिया, राइट। सो ये पूरा एक R है, पूरा ये A है, A, राइट, एज लेंथ। ये कितना है भाई? R, रेडियस ऑफ एटम। ये भी कितना है भाई? रेडियस ऑफ एटम। दैट्स व्हाई A is equal to 2R. Getting? So A is equal to 2R. Now I want to find face diagonal. Face diagonal. और 2R क्या होता है भाई? D होता है। 2R क्या होता है? D. D मतलब diameter. Right? So face diagonal in general, face diagonal is equal to root 2A. लिखिए दे देता है, right? root 2A. A की वैल्यू मुझे क्या मिली भाई? 2R. So root 2 into 2R. So 2 root 2R. Right? So in case of primitive, in case of primitive unit cell, in case of primitive unit cell, face diagonal is equal to 2 root 2R. Right? Body diagonal की बात करते हैं. Body diagonal.
बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई, √3a इन जनरल √3a, राइट। a की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, 2r, सो 2√3r, राइट। a की जगह मैंने लिखा 2r, सो 2√3r, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फेस डायगोनल इज इक्वल टू 2√2r एंड बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 2√3r, राइट। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है भाई, बॉडी के सेंटर पर एक एटम होता है, 8वां कॉर्नर में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका मुझे काम है वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। बॉडी सेंटर 2 कॉर्नर, बाकी के 8 कॉर्नर, बाकी के 6 कॉर्नर पर भी एटम है, बट अभी मुझे उसका काम नहीं है। सो ये 2 कॉर्नर पर एक एटम और ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इमेजिन करो, राइट। ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये जो डिस्टेंस होगा, राइट, ये जो डिस्टेंस होगा इतना, राइट, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, वो क्या होगा भाई, बॉडी डायगोनल जितना। कितना होगा, बॉडी डायगोनल जितना। इन जनरल क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3। इन जनरल क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई, √3 है ना। अब एटम्स की बात करते हैं, ये तीनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो ये क्या है, आधा ही टच कर रहा है, राइट, आधा ही अंदर है, दैट्स व्हाई इसका r ये पूरा है, मतलब इसका 2r और इसका फिर से r, सो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, 4r। तो यहाँ क्या रिलेशन मिला मुझे, √3a इज इक्वल टू 4r, और 4r क्या होता है, 2d, है ना, 4r मतलब 2d, 2 into diameter, राइट। सो √3a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d, ये याद रखना है बॉडी सेंटर के लिए, राइट। √3 इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। ऐसे यहाँ पर क्या था, a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d, ऐसे यहाँ पर √3 इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड a क्या मिलेगा मुझे, 4r अपॉन √3, एक रिलेशन मिला भाई, क्या मिला, 4r अपॉन √3, राइट। नेक्स्ट आई वांट टू फाइंड फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है भाई, किसी भी क्यूब का √2a, क्या होता है, √2a, a की वैल्यू है मेरे पास, √2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4√2r अपॉन √3, दिस इज फेस डायगोनल्स वैल्यू फॉर BCC, राइट। नाउ बॉडी डायगोनल तो क्या है भाई, पता ही है, बॉडी डायगोनल कितना होता है भाई, √3 है, लेकिन उसकी वैल्यू तो पता ही है हमें, क्या है, 4r। तो ये दोनों रिलेशन मिल गए, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r, √3 इज इक्वल टू 4r, राइट। सो ये बात ध्यान में रखनी। नेक्स्ट थर्ड, FCC ड्रॉ करता हूँ। FCC किसे कहते हैं भाई, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, ठीक है। अब मुझे फेस की बात करनी है, तो पूरा क्यूब में ड्रॉ करूंगा नहीं, सिर्फ फेस ड्रॉ करूंगा सिर्फ, ठीक है। कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है, और एक काम फेस के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। अब इमेजिन करो ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, राइट। सो मैं ड्रॉइंग कर देता हूँ, राइट। सो ये किसके ऊपर है, फेस के ऊपर है। सो डिस्टेंस की बात करते हैं, इतना डिस्टेंस मुझे मेजर करना है। ये क्या होता है, r, ये कितना होगा 2r, और ये कितना होगा, ये भी r होगा। तो टोटल क्या मिला मुझे, 4r, और ये क्या है भाई, फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल कितना होता है इन जनरल क्यूब के लिए, √2 है। सो इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, √2a इज इक्वल टू 4r, और 4r क्या होता है, 2d होता है, राइट। √2a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d, ये रिलेशन यहाँ याद रखना है, राइट। नाउ आई वांट टू फाइंड a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। सो ये क्या मिलेगा मुझे,
2 इंटू टू आर अपॉन रूट टू। सो ये मिला मुझे 2 रूट टू आर। ये क्या मिला भाई? 2 रूट टू आर। फॉर व्हाट? एफसीसी। फॉर व्हाट? एफसीसी, राइट? नाउ फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल क्या होता है भाई? रूट टू ए, लेकिन वो तो पता ही है हमें, रूट टू ए इज इक्वल टू 4r। रूट टू ए इज इक्वल टू 4r। नाउ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई? इन जनरल रूट थ्री ए। कितना होता है? रूट थ्री। ए की वैल्यू है मेरे पास, सो वो हो जाएगा 2 रूट टू इंटू रूट थ्री इंटू आर। सो ये हो जाएगा 2 रूट 6r। कितना हो जाएगा भाई? 2 रूट 6। सो ये बात हो गई प्रिमिटिव, ये बात हो गई प्रिमिटिव बॉडी सेंटर एफसीसी के लिए बॉडी डायगोनल एंड फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या याद रखना है? ये इन जनरल फॉर एनी क्यूब फेस डायगोनल इज इक्वल टू रूट टू ए, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट थ्री ए। तो इसको समराइज करते हैं। जो याद रखने जैसी चीज है जिसके ऊपर से ये सब आप बिना डिराइवेशन याद रख सकते हो, क्या याद रखना है? इन जनरल फॉर क्यूब, राइट? फेस डायगोनल क्या होता है भाई? रूट टू ए। बॉडी डायगोनल रूट थ्री ए। अब याद रखने वाली चीज है फॉर प्रिमिटिव, क्या होता है? a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d, राइट? बीसी बॉडी सेंटर के लिए, या फिर पहले लेते हैं फेस सेंटर के लिए, फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए, राइट? उसमें क्या होता है भाई? रूट टू ए इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d, राइट? और बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है? रूट थ्री ए इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखनी है और ये सारे डिराइवेशन आप कर सकते हो, राइट? ये दोनों इन जनरल फेस डायगोनल इज इक्वल टू रूट टू ए, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट थ्री ए। प्रिमिटिव के लिए a इज इक्वल टू 2r, फेस सेंटर के लिए रूट टू इज इक्वल टू 4r और बॉडी सेंटर के लिए रूट थ्री ए इज इक्वल टू 4r, राइट? सो ये बात हुई फेस डायगोनल एंड। सो अभी जो हमने पढ़ा तो देखते हैं कि उस पर से क्वेश्चंस क्या क्या है, राइट? सो दीस आर द सम एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। Calculate the atoms per unit cell if lattice point lies at each corner and two lattice point on each body diagonal। मतलब क्या है कि एटम्स जो है वो ईच कॉर्नर पर है एज वेल एज दो लैटिस पॉइंट बॉडी डायगोनल पर है, राइट? सो अब देखो भाई, कॉर्नर, ईच कॉर्नर मतलब क्या है भाई? 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है। सो कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है और बॉडी डायगोनल पर कितने प्रेजेंट है भाई? 2, राइट? ऑन ईच बॉडी डायगोनल मतलब एक बॉडी डायगोनल पर 2 है। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं भाई? 4, राइट? सो बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। उसके ऊपर एटम्स कितने होंगे? 2, राइट? अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बॉडी डायगोनल के ऊपर जो एटम, बॉडी डायगोनल कहाँ होते हैं? अंदर की साइड होते हैं। सो वहां पर कोई भी कंट्रीब्यूशन दूसरे यूनिट सेल के साथ होगा नहीं, राइट? और ये कॉर्नर पर क्या होगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा भी, हाँ या ना? फिर से कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट है, ओके, 8 का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, सो वो मैंने लिख दिया। बॉडी डायगोनल, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं भाई? 4, और 4 बॉडी डायगोनल पर ईच के ऊपर 2 है, एक के ऊपर 2 है और 4 बॉडी डायगोनल टोटल प्रेजेंट होते हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई? 8 हो जाएंगे। 4 2 जा 8, राइट? 8, यस और नो? और इसका कितना होगा भाई?
1. सो टोटल एटम्स कितने हो गए? टोटल एटम्स कितने हो गए? 1 + 8 इज इक्वल टू 9. फिर से कॉर्नर के ऊपर 8, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, ईच एंड एवरी कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. सो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1. बट बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 4 एटम प्रेजेंट है. कितने 4 एटम प्रेजेंट है? 4 एटम, राइट. सो सॉरी, एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और एवरी बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 एटम प्रेजेंट है. तो 4 × 8, सो 8 + 1. दिस इज द आंसर, राइट. टोटल एटम्स पर यूनिट सेल कितना हुआ? ये टाइप ऑफ यूनिट सेल में 9, राइट. सो ये हाइपोथेटिकल केस है, ऐसा कोई यूनिट सेल हमने देखा नहीं है, बट ये क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड A and R if it is a FCC, मतलब ये फेस सेंटर टाइप का यूनिट सेल है और इसके अंदर ये कुछ डेटा दिया हुआ है. क्या डेटा दिया है भाई? इतना डिस्टेंस है, ये A है, राइट. ये पूरा ये वाला, इसमें ये वाला R है, ये भी R है. व्हाट इज R? रेडियस ऑफ एटम. और ये जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है? 50 पिकोमीटर. कितना है भाई? 50 पिकोमीटर, राइट. सो नाउ फॉर FCC वी नो दैट √2a is equal to 4r. हाँ या ना? √2a is equal to 4r. That's why a is equal to 2√2r. ये √2 नीचे चला गया, so a is equal to 2√2r, right. Now ये क्या है भाई? a, इसकी बात कर रहा हूँ. a is equal to r plus 50 plus r. कितना हो गया? 2r plus 50, राइट. सो ये भी एक भाई मुझे इक्वेशन जैसा मिल गया. दोनों सेम है. सो देयरफॉर 2√2r is equal to 2r plus 50. 2 कॉमन निकल गया तो ये 2 कट हो जाएगा. दैट्स व्हाई √2r is equal to r plus 25, right. So I want to find r, right. So ये r इस तरफ वाला है. So √2r minus r is equal to 25. √2 क्या होता है भाई? 1.41. 1.41 r minus r is equal to 25, right. That's why 1.41 minus 1r कितना होगा? 0.41 r is equal to what? 25. So that's why r is equal to 25 upon 0.41. इसका कुछ आंसर आता है 60.97. इसका आंसर आएगा 60.97 व्हाट? पिकोमीटर. क्यों भाई? हमने r को ऐसा ही रखा है, r को हमने चेंज नहीं किया है. a को, इस वाले डिस्टेंस को 50 पिकोमीटर को हमने ऐसा ही रखा है, राइट. दैट्स व्हाई ये भी हमें पिकोमीटर में मिलेगा. सो r इज इक्वल टू 60.97 पिकोमीटर. अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई? a. सो a इज इक्वल टू 2√2 × 60.97. तो इसका कुछ आंसर आएगा 171.94 पिकोमीटर. 94 पिकोमीटर. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ ए. ठीक है, कुछ किया नहीं है. 2 रिलेशन है. एक ये वाला रिलेशन तो हमें इन जनरल पता ही है एफसीसी के लिए. √2 is equal to 4r is equal to a is equal to 2√2r, राइट. ये हमें दिया हुआ है that a is equal to r plus 50 plus r. दोनों को सेम है, दैट्स व्हाई इक्वल टू लिखा है, राइट. दैट्स व्हाई उसको सॉल्व किया आगे. सो r is equal to 60.97 पिकोमीटर, राइट. नाउ a फाइंड करना था. a is equal to 2√2r. तो उसमें वैल्यू रखी r की, सिंपल, राइट. नाउ if a lies at corner, b lies at body center and o lies at face center, then identify the stoichiometry of given unit cell. मतलब कोई यूनिट सेल है जिसके अंदर a एटम प्रेजेंट है, b एटम प्रेजेंट है एंड o एटम प्रेजेंट है. उन सब की पोजीशन बताइए. a एटम कहाँ पर है भाई? a एटम है कॉर्नर्स के ऊपर, b कहाँ पर है?
बॉडी सेंटर पर, राइट। और O कहाँ है भाई, फेस सेंटर पर, ठीक है। ए कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है, बी बॉडी सेंटर पर है, ओ फेस सेंटर पर है, राइट। सो कॉर्नर्स क्या होता है भाई, 8 एटम्स, 8 एटम्स, कॉर्नर 8 कॉर्नर है, आठों आठ पर एक एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है भाई, 1/8। सो ये कितना हो जाएगा, 1, राइट। बी की बात करते हैं, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होता है भाई, एक क्यूब में एक ही होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 ही होता है भाई। So 1 multiplied by 1, right? So it will be 1. But O is what? Face center. Face center कितने होते हैं? 6 face. आया ना? 6 face center होते हैं. और face center का contribution, face का contribution कितना होता है भाई? 1/2. कितना होता है? 1/2. So this will be 3. Right? So मतलब ये क्या दिखा रहा है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स A, B and O is equal to what? A is equal to 1, B is equal to 1 and O is equal to 3. So I can write this stoichiometry that A, B, O, 3. This is the answer, right? A, B, O, 3 is the resultant stoichiometry. ठीक है? Now ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से। यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, मतलब दो ही टाइप के एटम्स है, ए एंड बी। ए लाइज एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। लिखता हूं भाई, ईच कॉर्नर, ये कहां पर है, ईच कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस, फेस पर है, राइट। बी लाइज एट द सेंटर ऑफ ईच एज as well as at the center of cube, मतलब बॉडी सेंटर। अब भाई ये नया है, एज पर है, मतलब क्या है, एज के सेंटर पर है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है एज, सारी एज के ऊपर। कितनी एज होती है भाई, 12 एज होती है। कितनी एज होती है, 12, राइट। अब उसका कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए, सो एज सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इज इक्वल टू 1/4। उसके आजू बाजू 4 यूनिट सेल से घिरा होता है, दैट्स वाई उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। याद रखना, टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एज कितने होते हैं, 12, और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, ठीक है। सो यहाँ पर इफेक्टिव नंबर काउंट करते हैं। ए का इफेक्टिव नंबर क्या होगा, ईच कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस कितने होते हैं भाई, 6 फेस, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। बी की बात करते हैं, राइट। बी क्या होता है, ईच एज 12 एज होती है, अभी समझा है, 12 एज, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 प्लस कहां पर है, सेंटर ऑफ क्यूब क्या होता है, एक ही होता है, कंट्रीब्यूशन 1। बट यहाँ पर आगे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, व्हाट इज द रिजल्टेंट स्टोइकियोमेट्री इफ वी रिमूव वन ऑफ द बॉडी डायगोनल। What is the resultant stoichiometry if we remove one of the body diagonal? मतलब ये नंबर्स गलत है, क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी डायगोनल निकालना है, राइट। सो ये लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। एक बॉडी डायगोनल उसने निकाल लिया है, क्वेश्चन है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बॉडी डायगोनल अगर निकालेगा वो, मतलब ये वाला एक बॉडी डायगोनल उसने निकाल लिया, तो कौन से एटम निकलेंगे भाई उसमें, कोई भी एक बॉडी डायगोनल उसने निकाल लिया, तो कौन से एटम निकलेंगे, 2 कॉर्नर के और एक बॉडी सेंटर का एटम निकल जाएगा। अंडरस्टैंड, व्हाट इज द रिजल्टेंट स्टोइकियोमेट्री इफ वी रिमूव वन ऑफ द बॉडी डायगोनल, मतलब एक बॉडी डायगोनल निकाल लिया, राइट।
सो कितने एटम्स निकल गए, 2 कॉर्नर के निकल गए और एक सेंटर का एटम निकल गया, बाकी कोई एटम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई क्या होगा, 2 कॉर्नर एटम and 2 corner atoms and 1 center atom, body center atom remove, right। 2 corner atoms and 1 center atom remove। so अब A की बात करते हैं भाई, A में क्या होगा, A कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, सो A कॉर्नर पर है, बट 2 कॉर्नर एटम तो निकल गए, सो जो 8 कॉर्नर एटम थे वो कितने हो जाएंगे भाई, 6, बट कंट्रीब्यूशन तो ऑलवेज 1/8 रहेगा, कंट्रीब्यूशन तो ऑलवेज 1/8 रहेगा, राइट। फेस पर है, क्या बॉडी डायगोनल निकालने से फेस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो फेस के ऊपर तो 6 एटम है ही है, उन सब का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता ही है, ठीक है ना। बी की बात करते हैं भाई, बी की ईच एज, कितने एज होते हैं भाई, 12 एज और कंट्रीब्यूशन कितना होता है एज सेंटर एटम का 1/4 प्लस सेंटर ऑफ क्यूब, क्या वो एटम आएगा सेंटर ऑफ क्यूब, ये वाला नहीं भाई, सेंटर ऑफ क्यूब का एटम निकल गया, व्हाई, बिकॉज वी रिमूव वन ऑफ द बॉडी डायगोनल, राइट। दैट्स व्हाई व्हाट विल बी नंबर ऑफ ए, 6/8 into 3, 6/8 plus 3, 2 3 6, राइट, इज इक्वल टू, ये क्या होगा भाई, 3 होगा, राइट। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, 30/8 और ये क्या होगा, 3 होगा भाई, राइट। सो A इज व्हाट, 30/8 एंड B कितना होगा, 3, 30/8, 4 2 8 एंड ये होगा 15, सो A 15/4, देखो भाई फिर से, A हो गया 30/8 इज इक्वल टू व्हाट, 15/4, 2 कॉमन निकला दोनों में से, राइट। सो A इज इक्वल टू 15/4, दैट्स व्हाई A 15/4 एंड B 3, राइट। लेकिन ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते नहीं है, क्या लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम 4, तो इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 B 4 3 12, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। और इसमें से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकलेगा कॉमन, 3 कॉमन निकलेगा, सो A 5 B 4, 3 5 15 and 3 4 12, so this is the answer, A5 B4, A5 B4। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, देखो ये भाई टफेस्ट लेवल है, इस टाइप के क्वेश्चन में टफेस्ट लेवल है, इससे टफ क्वेश्चन एमएससी एंट्रेंस में आ सकता नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम इतना कम है, राइट। तो दैट्स व्हाई ये टफेस्ट क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, अच्छा क्वेश्चन है। सो व्हाट इज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। क्या यूनिट होगा भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सो डेंसिटी, इन जनरल डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू m/v, राइट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सो density of unit cell is equal to mass of unit cell upon volume of unit cell, right। अब मुझे अगर यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है तो मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। अब ये किस में चाहिए होगी, ग्राम में, और ये सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, छोटे यूनिट हो गए यहाँ पर, क्योंकि भाई यूनिट सेल है, ऑब्वियसली बात है, सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम में ही होगा, राइट। सो मास ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इजीली निकल जाएगा,
कैसे भाई? अगर मेरे पास एज लेंथ है, एज लेंथ अगर वो गिवन है a, सो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? विल बी a क्यूब, है ना, क्यूब है, सो a क्यूब, सो उस पर से मुझे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो मिल जाएगा, बट आई वांट मास ऑफ यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल का मास कितना होगा, राइट? उसके लिए सपोज नंबर ऑफ atoms is equal to Na, number of atoms present in unit cell, present in unit cell is equal to Na. What is Na? Avogadro constant, right? 6.0025 into 10 raised to 23, 6.022 into 6.022 into 10 raised to 23 इतने एटम्स होते हैं 1 मोल में, है ना? सो दिस इज Na, राइट? सो and molar mass of substance कितना है भाई? m दिया है, कैपिटल M गिवन है, राइट? स्पीसीज या फिर सब्सटेंस स्पीसीज लिख लेते हैं, एटम, उसमें एटम आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, आयन आ गया, राइट? तो स्पीसीज लिखता हूँ भाई, स्पीसीज कितना है भाई? m ग्राम पर मोल, ठीक है? m कैपिटल M ग्राम पर मोल, so this is the molar mass of species. Now weight of one species will be what? Weight of one species will be what? एक स्पीसीज का अगर मुझे वेट चाहिए, राइट? सो ये पूरे मोल का है, तो उसको मुझे Na से डिवाइड करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा m अपॉन n, आया ना, राइट? So weight of one species will be m upon Na gram, right? Weight of one species will be m upon Na gram. Suppose weight of two species is equal to 2 multiplied by m upon Na gram, आया ना? तो suppose मेरे यूनिट सेल के अंदर, suppose in unit cell there are z number of species, right? so मास कितना होगा भाई? वेट कितना होगा यूनिट सेल का? वेट ऑफ यूनिट सेल विल बी व्हाट? z multiplied by m upon Na, आया ना? Weight of unit cell will be what? Z into m upon Na. This is what? If there are Z species present in one unit cell, right? So this is, so अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, सॉरी, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, उसको अगर मैं D बोलूं तो D क्या होगा भाई? मास ऑफ यूनिट सेल कितना है? Zm अपॉन Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है भाई? a क्यूब है, सो ये क्या हो जाएगा? Na इंटू a क्यूब भाई. दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना है भाई. D इज इक्वल टू Zm अपॉन Na इंटू a क्यूब, Zm upon Na into a cube. So this will give density of unit cell. This will give what? Density of unit cell, right? So this is the density of unit cell. अब density of unit cell का यूनिट क्या हो जाएगा भाई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Now talking about Z, what is Z? species per unit cell. अभी हम लास्ट बात की थी Z के बारे में, कैसे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, राइट? सो प्रिमिटिव में क्या था भाई? प्रिमिटिव में कितने थे भाई? 1 थे, है ना? 8 into 1/8, राइट? BCC
BCC में क्या था भाई 2, FCC में कितने होते हैं टोटल एटम्स 4 होते हैं, राइट। अब ये बात हुई यूनिट सेल की इन जनरल, लेकिन कोई सॉल्ट दे दे आपको, फॉर एग्जांपल NaCl, so NaCl में टोटल कितने यूनिट्स कितने एटम्स होते हैं, NaCl के स्पीसीज कितने होते हैं 4, ये हम पढ़ेंगे, राइट। CaCl सीजियम क्लोराइड, उसका Z क्या है भाई 1 है। डायमंड कितना है भाई 8 है। मतलब डायमंड में पर यूनिट सेल 8 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं। कितने होते हैं 8 एटम्स ऑफ कार्बन। इन केस ऑफ NaCl देयर आर 4 NaCl species, 4 formula unit of NaCl, 4 formula unit of NaCl, right? So this you have to remember,